I am connected to the heavenly energies and I am grounded to the earth. I have balanced both the energies. There is free flow of energy happening between crown chakra and root chakra. Free flow of energy is happening between root chakra to crown chakra. I am connected to my intuition. I am connecting to the signals of whatever is good for me. I am grounded at the same time. I am grounded at the same time. I am connecting to all the positive energies around me. The energy is freely flowing from crown chakra to the root chakra, from the root chakra to the crown chakra. I am connected to the heavenly energies and grounded also. I am grounded and connected to the heavenly energies. ओम शांति। था बोल रही थी कि मैं आज सुबह को अर्ली मॉर्निंग सुबह को बुरा सपना देख के उठ गई। मैं बहुत डर गई थी तो मैंने सीधा आपको मैसेज किया। तो मैंने उसको तभी मैंने उसको मैसेज किया, अगली बार तो तेरे को ऐसे जागोगी डर गई ना करके। और क्योंकि यही टाइमिंग था तो मैंने बोला सीधा मॉर्निंग वाला सेशन अटेंड कर लेना तू, तेरा बाकी सब और ठीक क्या, है, तू टेंशन मत ले। सीरियसली बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत एनर्जी बहुत बढ़ रहा है मेरे लिए। तो मेरा इतना टाइम फ्री हो गया, क्योंकि वैसे तो कि पूरा दिन मेरा ऐसे ऑनलाइन कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन शेड्यूल बहुत फिक्स हो गया। बहुत माइंड ना फ्री हो गया, अब मेरे पास काम करने को और ऐसे आइज वाले डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि आपका एक जो सोने वाला वो है ना क्या कहते हैं उसको, वो आपका बनता ही नहीं है आंखों में। मैं कहा वाह भाई वाह, ऐसे कहते। फिर मैंने फिर से मेडिटेशन शुरू किया। मैं कहा लो, इनको तुम्हारे मुंह पे भी जूता है। तो मैं तो इसी ट्रैक पे जाके खुल आ जाती हूँ। ये उनको तो बनाना है केस एक एग्जैक्टली। of the same function of the front chakra, but represent our belief structure, our mindset, the template we have, which we are not ready to change or we are not ready to improvise. It is the energy that fuels and supports us. It is the seat of the unconscious issues. That is why these chakras, the back of the chakras, are connected directly to the reptilian part of your brain, which is at the back, where your spine and your brain gets connected, where I told you you have a points, gate of consciousness points, which I told you when I take my energy classes, energy medicine classes, to just rotate at the back of where you feel like there are 3 points, 2 below and 1 up, as a triangle form में points होते हैं, you need to massage that. This is the way how energy moves inside your body. Can you see here the circle of the energy, and then it start to tend inside your crown chakra through your spinal cord, and then it moves backward and the front to the sending energy to your chakras front and back both way. External to the body, the 9th level of biofield are created by the chakras energy from each chakra pairs in all level. So the 9th level, what was that? 9th level was, what was that? 8th was the karmic lesson. 9th was your soul connection. So when these energies start connecting to your soul, that means it is creating a biofield. That is why they always says to work on your aura. That is 7th layer of your body, your aura. So I hope you people have got insights that how these chakras work, how your body receives energy from below, how your body receives energy, and कैसे move करती है वो आपकी body में. And you are not supposed to work just in front part of your body, like when you are doing chakra work. It is making your breath move from front and back and then release. Make it move counterclockwise and then clockwise. Your breathing has such a power. That is why it is referred, your breathing is an atomic, it has atomic power, because it
can help you to come out. Pick would you choose? Which one do you like more? Right or left? Type or speak? I prefer the right. Left. Okay, Sudha ji says right. अंजू जी आप सुनाई नहीं दे रहे. Left pose. Left. Left is straight hair. Sudha ji is curly hair. Ashwini, raising your hand. If you want to ask a question, please unmute and feel free to do so. And if you just Hi. No, I have a question on this. please go ahead. So, in office meetings, I'm not confident, to speak up. So I choose to, और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 90% है. अभी 90% क्यों बोला गया है इसे भी हम समझेंगे. कॉन्शियस माइंड जो है वो कंप्लीटली लॉजिकल है. लॉजिकल यानी 2 + 2 = 4. इसको सिर्फ और सिर्फ लॉजिक समझ में आता है. चलो आज अभी क्या है, इंडिया में हम देखते हैं कि शाम हो चुके हैं, शाम के 7 बज रहे हैं, तो चलो ये कॉन्शियसली हम समझते हैं कि यस लॉजिकल है. और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये कंप्लीटली इलॉजिकल है. कंप्लीटली इलॉजिकल. इसको जो है लॉजिक के परे है. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी देखिए आप कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी कि मेरे हाथ में ये मोबाइल है. अभी मैं बोलता हूं कि मेरे हाथ में ये मोबाइल है और ये मोबाइल हाथ से अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये मोबाइल नीचे गिरेगा. तो कितने लोग इसके ऊपर करेंगे? कितने लोग यकीन करेंगे? चैट बॉक्स में मुझे बोलिए कितने लोग मुझे इस पे ऊपर यकीन करेंगे कि चलो ये मोबाइल नीचे गिरेगा मेरे हाथ से छूटने के बाद. यकीन है आपको? हाँ या ना अनम्यूट करके बोल सकते हैं. यकीन करोगे आप? चैट बॉक्स में बोल रहे हैं यस, यकीन करेंगे यस. और अगर मैं बोलता हूं मैक्सिमम सभी लोग यकीन करेंगे क्योंकि हम अर्थ पे है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो भी चीज है वो नीचे गिरेगी. अगर मैं बोलता हूं कि सपोज मेरे हाथ में ये मोबाइल है और मैं जब ये मोबाइल मेरे हाथ से छोड़ देता हूं तो ये धीरे 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 विंडो की तरफ जाएगा, विंडो से बाहर जाके कबूतर बन के उड़ने लगेगा. तो कितने लोग इसके ऊपर यकीन करेंगे? यकीन करोगे यस और नो? सब नो यकीन करोगे या नहीं? अनम्यूट करके बोलिए. यकीन बिल्कुल करोगे नहीं. मैडम? बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं. कोई नहीं क्यों नहीं करोगे? कोई नहीं करेंगे. कोई भी नहीं करेगा क्योंकि इलॉजिकल है ये चीज. इलॉजिक काल्पनिक है. ऐसे रियल नहीं होगा. हैरी पॉटर की है रियली रियल लाइफ नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इलॉजिकल चीज है. राइट. अभी हमने देखा कि क्योंकि हमारा माइंड जो है इलॉजिकल चीजों के ऊपर यकीन नहीं करता. हमारा कॉन्शियस माइंड जो है, कॉन्शियस माइंड सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल चीजों पर. जैसे मैंने बोला कि मोबाइल हाथ से नीचे गिरेगा, ये चीज लॉजिकल है, इसके ऊपर आप यकीन करोगे. लेकिन इलॉजिकल चीज मैंने बताई तो यकीन नहीं करेगा हमारा माइंड. राइट. सही चीज है. हाँ. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अभी हम देखते हैं कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो 16 घंटे काम करता है. जैसे हम सभी समझते हैं कि हम सभी जो है 8 घंटे के लिए सोते हैं और 16 घंटे के लिए हम काम करते हैं. तो ऐसा समझते हैं जब हम जगे हुए होते हैं तो 16 घंटे हमारा कॉन्शियस माइंड जगा हुआ होता है, वो काम कर रहा होता है. और जब हम आपको तकलीफ देती रहेगी क्या कि जैसे हमने देखा कि हम प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो पास्ट है वो प्रेजेंट जो है वो पास्ट से बंधा हुआ है. यानी हमारा जो पास्ट है हमें पीछे खींच रहा है. जैसे कि सपोज आप चेयर पे बैठे हुए और एक बड़ा सा रबर लेके आपको यहाँ से आप की कोशिश कर रहे हो लेकिन पीछे खींच रहे हैं. आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, पीछे खींच रहे हैं. पीछे कौन खींच रहा है? ये पास्ट की पेनफुल मेमोरीज आपको खींच रही है. मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. कई बार मेरे पास लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि सर हम बहुत सारे पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं लेकिन कुछ पल के लिए अच्छा लगता है लेकिन उतना रिजल्ट. तो ऐसा क्यों होता है? देखिए पॉजिटिव थिंकिंग करना, पॉजिटिव फील करना बहुत बढ़िया चीज है. डेफिनेटली उससे रिजल्ट आता है. हाँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि उतना रिजल्ट नहीं आता, वो काम क्यों नहीं करता. लेकिन ये कुछ लोगों के लेकिन कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन कचरा वैसा ही पड़ा हुआ है. तो क्या होगा? आपको फ्रेश फील नहीं होगा. फिर आप जाओगे मार्केट में, चलो मैंने अच्छे लग्जरियस कर्टन्स लेके आते हो, चलो लग्जरियस कर्टन्स आप लेके आए, लग्जरियस कर्टन लगाए, सोफा सेट लगाया, लेकिन कचरा गंदगी वैसी ही पड़ी हुई है, कचरा पड़ा हुआ है, तो आपको फ्रेश नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये लग्जरियस सोफा सेट, ये फर्नीचर, ये क्या है? ये पॉजिटिव थिंकिंग, ये पॉजिटिव. और अगर ये मन के अंदर, मतलब जैसे कि वहां पे जरूरत क्या है, आप बोलोगे कि मैं फर्श पे भी बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या है कि मुझे कचरा साफ चाहिए. फर्श पे बैठ के भी आप फ्रेश फील कर सकते हो, लेकिन कब? जब घर की पूरी साफ सफाई होती है.
और जब आप साफ सफाई करना शुरू करते हो तो साफ सफाई करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। जब आप साफ सफाई करने करने लगते हो तो धूल मिट्टी उड़ने लगेगी, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब पूरी साफ सफाई होगी तो फ्रेश फील होगा, तब आप चाहे फर्श पे भी बैठो तो भी अच्छा फील कर पाओगे। लग्जरियस सोफा सेट आ गया तो बहुत, उसमें और भी अच्छी बात है। तो इसी तरह है, जैसे मैंने एक घर का एग्जांपल दिया, वैसे ही आपके मन के अंदर अगर मरा हुआ चूहा बैठा हुआ है, आप बाहर से ऊपर से कितना भी पॉजिटिव अफर्मेशन दे दो तो कुछ पल के लिए वो आपको अच्छा फील करा देगा, लेकिन आपके अंदर से वो निगेटिव फीलिंग है तो वो आपको तकलीफ देती रहेगी, क्योंकि निगेटिव कचरा। इसी चीज के ऊपर काम करता हूँ कि पहले आपके अंदर जो कचरा है मन के अंदर, जैसे पहले हम घर की साफ सफाई करते हैं तो क्या इसको निकालना है। यस, हम डेफिनेटली इसको निकाल सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि निगेटिव न्यूरल पाथवेज को हम डिफ्यूज कर सकते हैं और नए पॉजिटिव न्यूरल पाथवेज तैयार करते हैं। तो हम पेनफुल मेमोरी, बैड एक्सपीरियंसेस को डिलीट करेंगे और जो फ्यूचर की जो थिंकिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसको, उस प्लानिंग को जो है, उस गोल को हम एक्सपीरियंस में लाना है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस वहां पे होना चाहिए, वहां वही दिखना चाहिए, तो डेफिनेटली वो एक्शंस हमारे तरफ से आसानी से हो जाएंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि एनएलपी में हमने देखा कि पास्ट को फेंट करना है और फ्यूचर को ब्राइट करना है। मैंने ऐसे कई सारे लोग मेरे लाइफ में देखे हैं कि कई सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि चलो कि मेरे लाइफ में ये है, इस पर्सन को देखता हूँ, इस घटना को याद आती है तो तकलीफ होती है। मैं उनसे कुछ एक्टिविटीज करवा लेता हूँ, वो करवाने के बाद मैं फिर से बोलता हूँ चलो अभी याद करो उस घटना को, याद करो उसी पर्सन को जिस पर्सन को याद करके तुम्हें गुस्सा आता था, परेशानी होती थी। तो बोलते हैं कि चलो मैं सर वो याद आ रहा है लेकिन तकलीफ नहीं हो रही है। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, कई सारे लोगों के साथ हुआ है कि वो घटना, वो पर्सन याद आता है लेकिन तकलीफ नहीं होती है। देखिए, हमें प्रॉब्लम किस चीज का है, हमें प्रॉब्लम प्रॉब्लम देती है, विचार प्रॉब्लम नहीं देते। विचारों की वजह से जो फीलिंग तैयार होती है वो फीलिंग प्रॉब्लम देती है। वो क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ टूल्स टेक्निक है, वो क्या करते हैं कि आपके अंदर उस पर्सन के बारे में, आपके मन में जो कुछ भी निगेटिव चार्ज है वो निगेटिव चार्ज डिफ्यूज कर देते हैं। तो वो निगेटिव चार्ज अगर डिफ्यूज हो गया, हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था लेकिन तकलीफ नहीं होगी, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, कई सारे लोगों के साथ हुआ। आद सच जुगाद सच, नानक होसे पै सच। आद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः, सत गुरे नमः श्री गुरुदेव नमः। आद सच सच जुगाद सच, जुगाद सच है पी सच, सच नानक होसे पी सच। सच आद सच सच जुगाद सच, नानक होसे है पै सच। नानक होसे पै सच। सच आद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः, गुरे नमः सत गुरे नमः श्री गुरुदेव नमः। आद सच सच जुगाद सच, जुगाद सच है पी सच। सच नानक होसे पी सच। सच आद सच जुगाद सच, सच है पै सच। सच नानक होसे पै सच। सच आद गुरे नमः गुरे नमः जुगाद गुरे नमः, गुरे नमः सत गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव नमः। आद सच जुगाद सच, है पी सच। नानक होसे पी सच। आद सच जुगाद सच, है पै सच। नानक होसे पै सच। आद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः, सत गुरे नमः श्री गुरुदेव नमः। आद सच जुगाद सच, सच
हैप्पी सच, नानक होसे पी सच, आद सच, जुगाद सच, है पै सच, नानक होसे पै सच, आद गुरै न मैं। जुगाद Done. एक बार कर लो, आधा Yes. छोड़ा। आद गुरै न मैं, जुगाद गुरै न मैं, सतगुरे नमे, सत गुरै न मैं, श्री गुरु देवे न मैं, आद सच, जोगाद सच, है पी सच, नानक होसे पी सच, आद सच, जोगाद सच, है पै सच, नानक होसे पै सच. Take a deep inhale. Everyone close your eyes and just take a deep inhale. And exhale. One more deep inhale. You can close your eyes and exhale. Just relax your eyes, your throat. Bring your shoulders down. Relax your chest. Connect to your stomach, your thighs, legs. Just relax. While relaxing, I just want every one of you put your right hand on your root chakra and your left hand on your second chakra. Right to the root, left to Swadhisthana, your second chakra, below your navel. And pray to Almighty, Universe, whomsoever you pray. Truth is the universe. And I bow to the universe. Connect to your energies, connect to your both of the chakras. Just relax your breathing. Take a deep inhale, very slowly. Inhale till your belly. And now when you relax, bring your right hand to your solar plex, that is your third chakra, above your navel. And your left hand to your heart. I want every one of you to connect your guts, that is your third chakra, and to your heart. Try to listen the message. Take a deep inhale. You can relax. Exhale. Take a deep inhale once again, and this time when you exhale, you will say shh. Once again, deep inhale. Shh. This is the secret. We can always love and accept ourselves. At any given point of time, we can do this. And this is a wonderful quote from Buddha, which I love. You yourself, as much as anybody in the entire universe, deserves your love and affection. Also, he said, Apodipo Bhava. That is also for the self. Can you please translate it? What did he say? Apodipo Bhava. Distance increase, reduce, anything happened?
or did you feel anything in your hands? Please just, you can put your hands down now that you've seen the distance, and just let us know. कोचिंग नहीं है, कोचिंग भी है, सब है, सिर्फ एक चीज मिसिंग है, वो है फॉर्म। हम बोलते हैं ना कि अगर कोई प्लेयर सेंचुरी करता है, डबल सेंचुरी करता है, बोलते हैं कि वो आज बहुत फॉर्म में है। अगर वो बार बार 5-10 रन पर आउट हो रहा है, नहीं, उसका फॉर्म चला गया है। फॉर्म ये शब्द सभी ने सुना होगा, जनरली स्पोर्ट्समैन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि यस वो आज फॉर्म में है, उसने डबल सेंचुरी की, और वो जल्दी आउट हो रहा है तो बोलते हैं उसका फॉर्म चला गया है। उसी फॉर्म को हम कॉमन पीपल हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कि मूड। हम टेक्निकली इस लैंग्वेज में, एनएलपी की लैंग्वेज में बोलेंगे स्टेट ऑफ माइंड, मन की अवस्था। सबसे ज्यादा लाइफ में जो इंपॉर्टेंट है वो है मन की अवस्था, स्टेट ऑफ माइंड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मन की अवस्था, मनस्थिति। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मनस्थिति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, स्टेट ऑफ माइंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज आप अपनी लाइफ में जहां कहीं भी हो, ज्यादा सक्सेसफुल हो वो आपके स्टेट ऑफ माइंड की वजह से, मीडियम सक्सेसफुल हो वो भी आपके स्टेट ऑफ माइंड की वजह से, कम सक्सेसफुल हो वो भी आपकी स्टेट ऑफ माइंड की वजह से, या फेल हो वो भी आपके स्टेट ऑफ माइंड की वजह से। आप लाइफ में जहां कहीं भी हो वो आपके स्टेट ऑफ माइंड की वजह से। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ? हम हमारे लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं यानी क्या चाहते हैं? अगर यहाँ पे पूछा जाए किसी को कि क्या चाहिए आपको लाइफ में, तो कुछ लोग बोलेंगे अपने खुद के गोल्स बोलेंगे कि चलो मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, जो भी है हर एक के कुछ ना कुछ गोल्स। मैं बोलता हूँ कि चलो आपको जो आपका ड्रीम होम है, तो आपको आपका ड्रीम होम मिल गया, उसके बाद क्या होगा? हाँ, ड्रीम होम मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, हैप्पीनेस मिल गया। यस, हैप्पीनेस क्या है? वो मन की अवस्था है। यानी हम हमारे मन की अवस्था को, हमारी मन की अवस्था जो स्टेट है, उस स्टेट को इंप्रूव करना चाहते हैं। कोई बोलता है कि यस मुझे इस तरह का जॉब चाहिए, मुझे इस तरह की सैलरी चाहिए मंथली, चलो वो हो गया तो क्या होगा? हाँ वो हो गया तो यस मुझे फाइनेंशियल सिक्योर लगेगा, बहुत खुश होता है। तो वो खुशी कहाँ है? मन में, स्टेट ऑफ माइंड में। यानी हम हमारी स्टेट ऑफ माइंड को इंप्रूव करना चाहते हैं हर चीज में, कुछ भी चीज। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं चेयर पर से यहाँ से उठ के ऐसे ऐसे यहाँ से सिर्फ ऐसे भी बैठता हूँ, तो भी मैं क्यों बैठ रहा हूँ? क्योंकि यस उससे क्या होता है, मुझे कंफर्टेबल लगता है। यानी क्या? मुझे अच्छा लगता है। यानी क्या? स्टेट ऑफ माइंड। हम हर वक्त हमारी स्टेट ऑफ माइंड को इंप्रूव करना चाहते हैं। आज का ये सेमिनार भी जो आप अटेंड कर रहे हैं, ये क्यों अटेंड कर रहे हैं? क्योंकि आपका स्टेट ऑफ माइंड को इंप्रूव करना चाहते हो, आपकी स्टेट को, आपकी मन की अवस्था को इंप्रूव करना चाहते हो, अच्छी है और अच्छी बनाना चाहते हो। हम मूवी भी देखने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं मूवी देखने के लिए? तो मूवी देखने के बाद अच्छा लगेगा। बस हम हमारे स्टेट को इंप्रूव करना चाहते हैं लाइफ में। जब से हम पैदा हुए तब से मरने तक हम हर वक्त हमारी स्टेट को, हमारे स्टेट ऑफ माइंड को इंप्रूव करना चाहते हैं। जहां है उससे हम आगे बढ़ना चाहते हैं और अच्छा लगे, और अच्छा लगे, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीजें लेके हो या किसी और चीजों से, चाहे वो दोस्तों के साथ पार्टी करके हो या मूवी देख के हो, चाहे बाहर खाना खाने से हो। क्यों जाते हैं? सब चीजें क्यों करते हैं? क्योंकि हम हमारी स्टेट ऑफ माइंड को एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है वो चीजें करके। अच्छा कहाँ लगता है? मन में। स्टेट ऑफ माइंड को इंप्रूव करना चाहते हैं, राइट? तो हमने देखा कि स्टेट ऑफ माइंड जो है, नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट बोलती है कि प्रॉब्लम जो है वो इस बिहेवियर में है ही नहीं। हम क्या कर रहे हैं? इस बिहेवियर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और बिहेवियर बदला भी जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डायरेक्टली जब बिहेवियर के ऊपर काम करोगे तो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस से, आसानी से बदला नहीं जा सकता। तो लेकिन एनएलपी यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम बिहेवियर में नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है आपके स्टेट ऑफ माइंड में। क्योंकि बिहेवियर कहाँ से आ रहा है? आपके स्टेट ऑफ माइंड से, आपके मूड से। सपोज निगेटिव बिहेवियर है, इसको बदलना चाहते हैं आप, क्योंकि निगेटिव बिहेवियर आ कहाँ से रहा है? आपके स्टेट ऑफ माइंड से। आपकी स्टेट ऑफ माइंड कहाँ से आई है? वो आई है इंसिडेंट। आपके मन में जो इंसिडेंट टू जो रिकॉर्ड हो चुका है, इंसिडेंट टू कैसे रिकॉर्ड हुआ, निगेटिव कैसे क्या रिकॉर्ड हुआ, वो रिकॉर्ड हुआ आपने जो कुछ भी डिलीट किया, डिस्टॉर्ट किया, जनरलाइज किया, उसकी वजह से आपके मन में जो इंसिडेंट टू रिकॉर्ड हुआ वो निगेटिव तरीके से रिकॉर्ड हुआ। उसकी वजह से आपकी स्टेट ऑफ माइंड निगेटिव हो गई। स्टेट ऑफ माइंड निगेटिव होने की वजह से आपका बिहेवियर निगेटिव होगा। अभी सिंपली यहाँ पे हम क्या करते हैं? सामने वाले पर्सन को, बिहेवियर को बदलने के लिए कोशिश नहीं करनी। कोशिश किस चीज की करनी है? कि सामने वाले पर्सन के स्टेट ऑफ माइंड, उसका मूड अगर बदल जाता है तो ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में जो है उसका मूड बदल जाता है, स्टेट ऑफ माइंड बदल जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसका बिहेवियर बदलेगा। कैसे बदलेगा? मैं आपको बोलता हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे कि कुछ लोग हैं, तो मेरा सवाल है यहाँ पे सभी से, तो कुछ लोग अनम्यूट करके जवाब दीजिए, क्योंकि चैट बॉक्स में जरा ज्यादा टाइम लगता है। अनम्यूट करके तुरंत जवाब दीजिए। मेरा सवाल है कि जैसे आपके हाथ में सपोज एक कप है, कप में चाय है, कप में चाय है और आप चाय लेके जा रहे हैं।
कप को आपने पकड़ा है, आपके हाथ में चाय है, और सपोज आपको मैंने धक्का दे दिया, तो नीचे क्या गिरेगा? अनम्यूट करके बोलिए या चैट बॉक्स में बोलिए, क्या गिरेगा नीचे? कौन बोल सकता है? आपके हाथ में कप है, कप में चाय भरा हुआ है, और आपको धक्का दिया गया, तो नीचे क्या गिरेगा? चाय सर। चाय गिरेगी डेफिनेटली। और सपोज आपके कप में कॉफी है और धक्का दिया, तो क्या गिरेगा? कॉफी। कॉफी गिरेगा, कॉफी गिरेगी, जो है वही गिरेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आपको लगा कि ये क्या सवाल पूछ रहे हैं, चाय कॉफी? डेफिनेटली जो है वो गिरेगा, क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपके मन के अंदर जो भी है, अगर आपके मन के अंदर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फियर है, सामने वाले के मन में गुस्सा है, आपने उस एंगर को दबाया हुआ है आपके मन के अंदर, तो बाहर वही आने वाला है। आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा परसों आएगा, लेकिन आएगा जरूर, राइट। जरूर आएगा। हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। सभी के लाइफ में ऐसा होता है, आपके लाइफ में भी होगा, मेरे लाइफ में भी होगा। तो हमारे अंदर जो है वो आता है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपके अंदर अगर निगेटिव इमोशन से, तो निगेटिव इमोशन आएंगे। दुखी इंसान आजू बाजू वाले लोगों को दुखी ही करता है, परेशान इंसान आजू बाजू वाले लोगों को परेशान ही करता है, डिस्टर्ब इंसान आजू बाजू की सिचुएशन को डिस्टर्ब ही करता है। जो इंसान खुश है, हैप्पी है, वही आनंद दे सकता है। जो इंसान खुश है वो आजू बाजू को खुशी बांटेगा। जो इंसान बहुत खुश है, वो बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, वो सामने वाले को दुख दे ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता। जो ऑलरेडी मन में डिस्टर्ब है, वही सामने वाले को डिस्टर्ब करे। जो ऑलरेडी स्ट्रेस में है, वो सामने वाले को स्ट्रेस दे। देखिए ना, जब कभी भी खुश थे, बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, आप सामने वाले को दुखी नहीं कर सकते। आपके अंदर जो होता है वही बाहर चल सकता है। तो यही मैं बोल रहा था कि हमारे अंदर जो स्टेट ऑफ माइंड है, सबसे इंपॉर्टेंट ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो जैसी होगी पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा निगेटिव, न्यूट्रल होगा न्यूट्रल। तो हमने देखा कि इवेंट में उससे स्टेट ऑफ माइंड तैयार होता है, और जो भी स्टेट ऑफ माइंड होगा उस हिसाब से हमारा बिहेवियर। तो हम देख रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट टू होती है, तो हमारे दिमाग में जो एएनएस होती है, एएनएस यानी एटॉमिक नर्वस सिस्टम, ये हमारी जो है ह्यूमन बॉडी की सबसे रिजिड सिस्टम होती है, एटॉमिक नर्वस सिस्टम, कि इसमें चेंजेस लाना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। ये एटॉमिक यानी ऑटोमेटिकली चल रही है। इस एएनएस के कंट्रोल में कई सारी चीजें होती है। आपका वेट कितना होना चाहिए इसके कंट्रोल में होता है, आपके बॉडी के कई सारे मतलब जो फंक्शंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली रन होते हैं, वो एएनएस के कंट्रोल में। इसमें चेंजेस लाना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, बहुत कोशिश करने के बाद उसमें चेंजेस आते हैं। और ये जो एएनएस है, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसमें फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिव होती है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कुछ लोगों को पता होगा, तो मैं कई सारे लोगों को पता नहीं है, मैं तो बता देता हूँ। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या है? ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हमारे ब्रेन में वायर्ड हो चुका है। कब से वायर्ड हो चुका है? जब हम जंगल में रह रहे थे, लाखों साल पहले जब हम जंगल में रह रहे थे, ह्यूमन सिविलाइजेशन के पहले, तो उस वक्त हमारे ब्रेन में ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ब्रेन वायर्ड हो गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमें हमारे बॉडी के सर्वाइवल के लिए इसकी जरूरत थी, इसलिए हमारे ब्रेन में वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो गया। ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स यानी क्या? कोई भी घटना घटती है, एक तो हम फाइट करते हैं, उस सिचुएशन से फाइट करते हैं, या फिर फ्लाइट यानी उसको छोड़ देते हैं। दोनों में से कोई एक चीज करेंगे, एक तो फाइट करेंगे, सिचुएशन को फेस करेंगे, या फिर फ्लाइट जाने छोड़। तो देखिए, फाइट और फ्लाइट क्यों ब्रेन वायर्ड? क्योंकि जिस वक्त हम जंगल में रह रहे थे, उस वक्त हमारे फिजिकल बॉडी को सिक्योरिटी की जरूरत थी। तो सिक्योरिटी की वजह से, कि चलो जंगल में रह रहे, जंगली मतलब बहुत ही जंगली जानवर है, चलो कि भेड़िया है, टाइगर है, लायन है, तो कोई भी जैसे कि सांप है, कोई भी कहा जरा। दो तरीके से ये क्या कि एक तो पहला तरीका है कि डायरेक्टली मिलते हैं, डायरेक्टली मिलते पर हम अपने विचारों के ऊपर, अपने फीलिंग्स के ऊपर, तो मन बहुत ही सोचने के लिए बहुत ही जटिल चीज है। तो इसके ऊपर डायरेक्टली मन के ऊपर काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टाइम ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली कर सकते हैं। इंस्टेंटली नहीं होगा, टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करनी है, आसान नहीं। और दूसरा तरीका है कि हमारे फिजिकल बॉडी में जो है, फिजिकल बॉडी के थ्रू हमारे माइंड को करता है। यानी हमारा जो बॉडी पोस्चर है, हमारा बॉडी पोस्चर है, बॉडी पोस्चर अगर हम चेंज करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड पर होता है। यानी जब आप बहुत स्ट्रेस में है, जब आप बहुत स्ट्रेस में है, परेशान है, डिस्टर्ब है, तो ये सब बॉडी में आपके चेंजेस होगा। हम नोटिस नहीं करते, लेकिन होते हैं। ये तो मैंने 4 चेंजेस बताए, ऐसे हजारों लाखों, कितने जानो कितने सारे चेंजेस होते होंगे अंदर, लेकिन
हम सभी के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना, ये 4 चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना है और इसको फॉलो करना है। जब आप बहुत स्ट्रेसफुल में हो, बहुत डिस्टर्ब हो, हाँ, ये सब बॉडी में, उस वक्त आप इंस्टेंटली हमारे अपने खुद के माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उस वक्त आपको क्या करना है कि जब आपका माइंड रिलैक्स होता है, तब आपका ब्रीदिंग कैसा होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग या डीप ब्रीदिंग। तो आपको उस वक्त क्या करना है, जब माइंड स्ट्रेसफुल है तो आपको डीप ब्रीदिंग लेनी है, एक 5-6 लंबी सांसें लेनी है। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, कंधे स्ट्रेट रखने हैं, नेक को स्ट्रेट रखना है। फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे आप रिलैक्स होता है तब वैसे फेशियल एक्सप्रेशन रखने हैं। ये आप खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। ऐसा एक 5-10 मिनट तक आप करोगे तो इंस्टेंटली, मैं बोलता हूँ इंस्टेंटली, जब मैं मेरे वर्कशॉप में मैं करवाता हूँ तो इंस्टेंटली आप अपने माइंड में चेंजेस देखना शुरू करोगे। इंस्टेंटली मैं बोलता हूँ, कितने भी स्ट्रेस हो, जब ये आपका बॉडी पोस्चर होगा। In Buddhism, Tara is a goddess that is connected to Tantric Buddhism more than Mahayana. She is in the Vajrayana Buddhism. She will be more common. There, the divine feminine is also worshipped. And she is given a more softer form in Buddhism. Although the function is pretty much the same because she helps us to overcome ego, false ideas, wrong knowledge, all that. Helps us to come out of all that. Come out of this I know, that I come out of it and just see things for what they are. You can read about all this. A lot of information is there on the internet. So whoever feels connected, please go ahead and read about it. There's plenty to read, plenty to understand. These concepts can be applied either directly through bhakti. They can also be understood through the lens of Vaidyam, which is psychology, physiology. You can understand it through many different ways of seeing. So as you are, you will understand these concepts. So this was the brief I wanted to give you. And mantra we are chanting today for Tara is in Sanskrit, it is Om Tare, Tu Tare, Ture Swaha. In Tibetan, there is a slight variation. It just goes Om Tare, Tu Tare, Ture Soha. So I'm doing the Soha version. If you're more comfortable with the Swaha version, you can chant it as Swaha. It is perfectly all right. So I'll keep the images on the screen. Whichever connects to you, you can use the image. Om Tare Ture Soha. 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 Societal conditioning which is come into them. So that's spending time with children is one of my activities that gives me a lot of joy. Kritika ji, Kritika Akka. Hi, hi everyone. I'm Kritika. I'm from Delhi. My favorite food item is dal makhani. And you know, if I go anywhere and if I love it, I'll be very honest. And if I don't, I can again be very honest. I can't lie if I don't like it, you know. One activity that gives me joy, I think, Komal, very similar to you, spending time with, you know, children. I think you just forget everything, you know, you're just with them, you just completely, you don't involve or you don't even think about anything else at that time, you know, you're just 100% with them. So I love spending time with my niece and nephew. So that really gives me immense joy, and also spending time with nature. So, you know, just going for walks, that also brings me a lot of joy. Yes, yes, that's ditto. Is it self-love? Yes. Definitely. Unless we forgive ourselves, we cannot forgive others. So that's a big yes. Unhappy, when we are unhappy and complaining about our situation, about whatever present situation we are in, are we loving ourselves? Are we accepting ourselves? And I'm unhappy, complaining, and okay, Chaya is trying to come. I'm admitting her, Jyoti ji. Yeah.
Okay, so no, we all tend to forget this, right? When we are unhappy, we do exactly this and we don't realize that we are not loving ourselves. So, yes, something to be aware about. And when we are healing and growing, because healing always brings growth. So, when we're healing and growing, are we loving ourselves? Definitely yes, because without self-love, healing cannot happen. So, let's go to the next slide. Where I am asking about, okay, I'm giving about what we will be covering. So this time we'll do the same. That is one well-known mirror exercise we call by an author, a very famous